All right, so a very warm welcome to all of you in this webinar where I'm going to stress on the importance of learning foreign languages. A very warm welcome to all the participants. I can see some of my PhD scholars as well. This webinar is dedicated to learning the importance of foreign languages in our lives and how important they are in the personal as well as the professional life. And before I start, I would like to tell you that I am Dr. Ruchi Mishra Tiwari and I am the head School of Languages, Rabindranath Tagore University, Bhopal. And I am guiding PhD for English literature scholars, and I take classes for BA, MA English literature. But at the same time, I am the coordinator for Center of Language Learning, and this center is running 4 languages right now, certificate course in 4 languages. We have French, German, Japanese and Spanish. So these are the 4 languages where we are running certificate courses, and we are basically running the first level course, the basic level course, but we also for French language we have done advanced level course as well. And I'll be telling you more in detail. Please stay glued to this webinar till the end, because there are some very important facts which will be there in front of you, which is going to be an eye opener for you, and at the same time which will help you that how you can upgrade your CV, how you can upgrade your biodata with the help of learning a foreign language. And I'm going to go bilingual, both English and Hindi. So all of you, is this is a webinar. It is open for all. It is free of cost. Of course, there is fee for doing the certificate course, but this is going to be a free webinar. So make use of this, because during this webinar also I am going to teach certain words of foreign language. So and I'm going to ask you in the middle of the session anytime that what have you learned, which language, which word have you learned. So please listen carefully, and if possible note down the words which I'll be telling you. So listen to this webinar very attentively. It is going to be very useful, everything about it. So we will start, and at the very beginning only I am teaching certain words, so that in the course of time I will ask you. So this is Japanese. We have Japanese language here. So for hello, the word is konnichiwa. So I am saying konnichiwa to all of you. So hello means konnichiwa, and ohayo gozaimasu is good morning, and arigato is thank you. So try to remember konnichiwa, that is hello, and arigato is thank you. So at least remember these 2 words are easy, konnichiwa and arigato. So these are Japanese words, and I hope you're taking down, you're noting down, because I'm going to ask you what is hello in Japanese and what is thank you in Japanese. So please note down these words. It's all very easy. And it is just, believe me and trust me, each and every one of you who has joined this webinar, who is listening to me right now, has the capacity to learn any language. Each human being has the capacity to learn. Even you don't have to be highly intelligent, you don't have to be highly qualified, to learn any language. So I hope you remember now. Hello is konnichiwa and thank you is arigato. Now for German language, now this session has specifically been organized for German language, but I'm going to give you inputs for all languages which we are running here. But German language session is going to start in June. So that's why we're doing. So again, as you can see, in German, for good morning, we say Guten Morgen. For good day, we say Guten Tag. And for thank you, we say Danke. So thank you is Danke. And good morning is similar to good morning is Guten Morgen. So GM in good morning, GM in Guten Morgen as well. So good morning, Guten Morgen, Danke is thank you, and good day you have Guten Tag. Please remember, I'm going to ask you. So Guten Morgen, Guten Tag and Danke. Now, as I told you that each one of you who is attending this webinar, you have the capacity to learn any of the languages. So human beings have the capacity to learn 15 languages at a time.
Those who have joined the webinar just now, a very warm welcome to all of you. We are giving inputs on learning of foreign languages, and it is completely online. You don't have to come anywhere. You have to sit in the comforts of your home and learn a foreign language and get a certificate which will be recognized all over the world. So this session is devoted to the languages that we are running in Rabindranath Tagore University. I'm Dr. Ruchi Mishra Tiwari. I'm the coordinator of language learning, and we have Japanese, French, German, and Spanish. Now, as I was telling, that human beings have the capacity to learn 15 languages. You don't have to be, as I told you, you don't have to be highly qualified. You know, you do not have to be really intelligent. There is a person in Goa, if you have been to Goa, or if you have been to any tourist place for that matter, there are tourist guides available. So I have personally witnessed there is a person in Goa, and when you go there, you can find him as a tourist guide, and he is illiterate. He does not know how to read any language. He has not been to school, but he can speak 5 languages fluently. He can speak 5 languages fluently. And how did he learn that language? Just by talking to the tourists. So when there were tourists from Italy, when there are tourists from Germany, when there are tourists from France, he can easily interact with them. And he is illiterate. And he is making a lot of money. So again, this proves you don't have to be highly educated and intelligent to earn money in your life. You just need to conquer one skill. And he had the skill of learning a language. And just by listening, he learned the language. So to become rich in life, you don't need to be highly qualified, educated, having so many degrees. You have to have that skill and use that skill in proper way and earn lots of money. So he's earning lots of money. He's a very rich person. He still continues to be a guide. He has mastered 5 languages. So all of you who are listening to this webinar right now, I'm sure you all are highly qualified, you're intelligent people, you're doing well in your field. You can easily, very easily learn language. It's up to you. It is inside you. We are there to guide you. There will be a teacher provided to you who will be taking your classes, will be guiding you. But you can easily learn and grasp that language. It's up to you. And as I said, it's, you can see on the screen that there are 15 languages any human being can master. Now, the languages which are spoken all over the world, which are most famous and which should be learned are Chinese. Of course, the language is called as Mandarin. So Mandarin is spoken by maximum people because China is the most populated country in the world. So obviously, the language spoken there is spoken by maximum people of the world. So you have Mandarin, then Spanish, English, Hindi, all are in sequence as to how much they are spoken. So even you can see Hindi and Bengali, Bangla language is also spoken all over the world by so many people. There are people, you know, in Bangladesh, there are people who have migrated from India and they also can speak. We will be taking questions at the end of the session, and there is something important in each slide. So please listen to it carefully. And today, as I'm telling you, all those who are attending this webinar, definitely you're going to grasp a lot of things, and it is going to be an eye opener. You're going to widen your horizon, and this is the aim. So there are so many advantages of learning a foreign language. कोई भी भाषा आप सीखकर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, और it is going to make a difference in your personal as well as professional life. जहाँ मैंने आपसे बात की कि you can become rich by using the skill of language learning, but it is going to also make a difference in your personal life. तो आपकी personal और professional life दोनों में ही बहुत बड़ा difference आ सकता है if you learn a foreign language. So जो लोग बाइलिंगुअल होते हैं, जिनको 2 लैंग्वेज आती है, यूजुअली पीपल दे नो देयर मदर टंग. अगर आप बांग्ला बोलते हैं घर में, तमिल बोलते हैं, तो आप वो बोल लेते हैं और एक साथ और लैंग्वेज भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं इजीली. सो समटाइम्स पीपल ऑलरेडी नो 3 लैंग्वेजेस. इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक लैंग्वेज जब आप सीख लेते हैं, इट ऑलरेडी इम्प्रूव्स योर नैक ऑफ लर्निंग द अनदर लैंग्वेज. आप एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीखेंगे, सो इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव अनदर लैंग्वेज. अगर आप तमिल सीखते हैं तो बहुत इजीली आप मलयालम और तेलुगु भी ग्रास्प कर लेते हैं, because they are all related and similar, although Tamil is a difficult language, लेकिन फिर भी मलयालम और कन्नड़ और जो साउथ की और हैं, they you can easily learn. हमारे यहाँ जो ट्रेनर्स है, those who are teaching classes of German language, उनको स्पेनिश भी आती है. They have mastered 2-3 languages, so it's always there.
आप जैसे ही एक लैंग्वेज सीखते हो आपकी माइंड इतना इट यू नो एक्सपैंड्स, आपकी मेमोरी शार्प होती है। आई विल बी टेलिंग यू दैट स्लाइड लेटर ऑन। तो easily you have the capacity to grasp more, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी मेमोराइजिंग पावर बहुत बहुत बढ़ जाती है। तो इट रियली हेल्प्स यू इफ यू आर अ स्टूडेंट। एंड यू नो as just you can see in the slide, आपको मल्टीटास्किंग में हेल्प मिलती है। इट हेल्प्स यू टू यू नो इम्प्रूव योर मेमोरी, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस। आपका ब्रेन बहुत शार्प वर्क करता है, क्योंकि जो पहले जब आप वर्ड सीखते हैं तो वो आपके लिए टंग ट्विस्टर्स होते हैं, यू नो, बिकॉज दे आर न्यू टू यू। सो दे आर ऑल टंग ट्विस्टर्स। जैसे हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था। सो हेलो को क्या बोलते हैं जापानीज में? डिड यू लर्न एंड नोट डाउन? हेलो, what is the word in Japanese for hello? Did you learn that word? Okay, okay. So some people are typing in the chat box. Yes, yes, yes. So hello is konnichiwa. So konnichiwa, जब हम konnichiwa बोल रहे हैं, हमारे लिए शुरू में वो एक टंग ट्विस्टर है, यू नो। सो और गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं जर्मन में? इन जर्मन लैंग्वेज गुड मॉर्निंग इज, आई टोल्ड यू, GM, गुड मॉर्निंग। तो जर्मन में भी GM है, is Guten Morgen. Yes, very good. Guten Morgen. So, so many people are, thank you for replying, all of you. So, आपके लिए वो वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन जैसे आप वो वर्ड्स याद करते हैं, आपको न्यू वर्ड्स याद करना बहुत इजी होने लगता है। सो फर्स्ट स्टेप आप लीजिए, फर्स्ट स्टेप यू टेक एंड देन द जर्नी इज इजी, है ना। बट यू हैव टू, स्विमिंग पूल में पानी में कूदना पड़ता है टू लर्न स्विमिंग। if you're sitting at the bank of the river, or if you're sitting at the edge of the swimming pool, तो swimming नहीं आएगी, कूदना तो पड़ेगा। you have to jump into the water. So similarly language learning के लिए आपको first 2 steps लेने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा, take the initiative and you will see the whole world opening for you. आप करियर्स की बात करते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास यही आते हैं, स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, जो लॉ कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो साइंस कर रहे हैं, कि मुझे क्या फायदा होगा लैंग्वेज सीखने से, है ना। मैं तो BSc कर रही हूँ, मैं तो PhD कर रही हूँ, व्हाट विल आई गेन? तो आप अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप MBA कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, एनी सब्जेक्ट, इरिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज सीखकर, एक कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख के आप बहुत सारे करियर ऑप्शंस अपने लिए खोल लेते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर में BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर की जो फील्ड है उसके ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एक पैरेलली भी आपने अपने लिए करियर खड़ा कर लिया है लैंग्वेज का। तो उसमें क्या होता है, जैसे करियर एज ए ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर ये अपने आप में एक ह्यूज ह्यूज थिंग। मैं आपको आगे की स्लाइड में बहुत बताने वाली हूँ कि कैसे एक पर्सन ने कितना बड़ा करियर, अपना ओरिजिनल करियर छोड़ के सिर्फ इंटरप्रेटर बन के सेलिब्रिटी वो कैसे बन गए। सो आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट स्लाइड आल्सो। सो या इंटरनेशनल सेल्स मार्केटिंग में आप जाते हैं, अगर सेल्स मार्केटिंग इंटरनेशनल लेवल हो, या आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वाले सीड कंपनी ज्वाइन करते हैं, अगर वो इंटरनेशनल कंपनी है, MNC है, सो दे विल बी क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया। सो व्हेन यू आर डीलिंग विद क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया, यू हैव टू नो द लैंग्वेज। जो चाइना में बैठे लोग हैं, जो जापान में बैठे लोग हैं, वो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। So they will not talk to you, they will say call a person who knows Japanese, call a person who knows Chinese. तो अगर आपकी कंपनी का बिजनेस वहां हो रहा है, so they your company needs a person who, आप एग्रीकल्चर की ही कंपनी में गए हैं, but your company needs a person who can speak that language as well, है ना। So that way, जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश टीचर्स हैं, और लॉ डिपार्टमेंट में फ्रेंच टीचर्स की जरूरत होती है, उनको एक फ्रेंच। तो अगर हमारे इंग्लिश टीचर वहां जाके फ्रेंच भी पढ़ाता है तो उसको एक्स्ट्रा इनकम होती है, जबकि उसका सब्जेक्ट कुछ और है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप होटल मैनेजर, ऑफ कोर्स इन होटल इंडस्ट्री देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर पीपल हु नो फॉरेन लैंग्वेजेस, और एट द सेम टाइम एज अ फ्लाइट अटेंडेंट। सो अगर आपको बहुत शौक है एयर होस्टेस बनने का, पायलट बनने का, फ्लाई करने का, तो इट इज अ कंपल्सरी थिंग, इट इज मैंडेटरी दैट यू शुड नो वन फॉरेन लैंग्वेज। आप एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट, पायलट, कुछ भी आप रिलेटेड टू एरोप्लेन बनना चाहते हैं, रिलेटेड टू फ्लाइंग बनना चाहते हैं, इट इज कंपल्सरी दैट यू नो वन फॉरेन लैंग्वेज। उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ते, आपकी सीधे आगे नहीं बढ़ता है।
फिर आप अपनी तरफ से यूट्यूबर, लैंग्वेज ब्लॉगर, कंटेंट राइटर वो तो बन ही सकते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है इसमें, टीचिंग अब्रॉड एज एन ESL टीचर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ MOU हुए हैं। जर्मनी में, फ्रांस में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां हिंदी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है या इंग्लिश एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश के लिए तो उनको बहुत लोग मिलते हैं, पर जो हिंदी एज अ सब्जेक्ट वहां पे जाके पढ़ाते हैं, तो उनको हिंदी और जर्मन दोनों आनी होनी चाहिए। सो अगर आपको हिंदी तो आती है, आपकी मातृभाषा है, एंड इफ यू नो जर्मन एज वेल, तो जर्मनी में जाकर आप जॉब कर सकते हैं। वो ऐसे वहां पे बहुत कमी है। जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, पूरी यूरोपियन कंट्रीज में मैन पावर इज नीडेड, दे नीड पीपल, उनको लोग मिलते नहीं है। तो अगर आप हिंदी अच्छी जानते हैं और जर्मन अच्छी जानते हैं, आपने जर्मन यहाँ सीख लिया, तो वहां के एक यूनिवर्सिटी के आप प्रोफेसर बन सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के, आपके एग्रीकल्चर के, लॉ के, साइंस के, किसी भी सब्जेक्ट के, क्योंकि वहां पे उनको ऐसे पढ़ाने वाले चाहिए। तो हमारे यहाँ जो एक 2019 में हमने विश्व रंग के करके एक बड़ा सा फेस्टिवल किया था रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल में। तो वहां पे जो हिंदी पढ़ाते हैं वो लोग आए थे, तो उन्होंने बताया कि हमको बहुत जरूरत है कि कोई जर्मन थोड़ा सा भी जानता है या फ्रेंच थोड़ा भी जानता है, तो हमारी कंट्री में आकर उनको इजीली जॉब मिल सकती है। सो दे नीड पीपल, सो आप बाहर जाकर पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। दैट इज वन थिंग। अब मैंने आपको बताया इंटरप्रेटर होकर कितना बेनिफिट मिलता है। इफ यू आर एन इंटरप्रेटर, इफ यू आर ट्रांसलेटर, व्हाट बेनिफिट्स यू कैन गेट। तो ये जो आपको तस्वीर सामने दिख रही है, उसमें जो बीच में व्यक्ति खड़े हैं उनका नाम है मधुचंद्रन। उनका नाम है मधुचंद्रन, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। ही इज एन IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस। IES से भी जो एक स्टेप ऊंचा होता है, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस में ये सिलेक्ट हुए थे। और फिर इनको चाइना में, चाइनीज एम्बेसी में इनकी पोस्टिंग हुई थी। ही वाज पोस्टेड इन चाइना, इन जहाँ पे इंडिया की एम्बेसी थी वहां पे चाइना में। तो वहां पे जब उनकी पोस्टिंग हुई चाइना में, तो उन्होंने मैंडरिन लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज सीख ली। ही लर्न दैट लैंग्वेज बिकॉज ही, उसको उनको रोज दिक्कत होती थी बातचीत करने में वहां के एम्प्लॉय से। सो ही लर्न एंड ही मास्टर्ड दैट लैंग्वेज। फिर वो वापस इंडिया आए। अब जब चाइनीज प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए, जिनपिंग यहाँ पे आए और मोदी जी से उन्होंने ट्रैक किया, दिस इज बिफोर कोरोना, 2019 के पहले की बात है, जब यहाँ पे वो आए थे। और तब ये व्यक्ति जो था, वो पूरे टाइम मोदी जी और जिनपिंग के बीच में रहे, क्योंकि वो मोदी जी को हिंदी में बताते थे जो ये चाइनीज में बोल रहे थे, फिर जो मोदी जी बोलते थे वो ट्रांसलेट करके उनको बताते थे। तो फॉर 2 or 3 days ही वॉज इन द सेंटर ऑफ ऑल मीडिया। किसी भी न्यूज चैनल में मोदी जी और जिनपिंग तो कम दिखाई पड़ते थे, ये ज्यादा दिखाई पड़ते थे, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज अकम्पनिंग देम। और द सेम टाइम आप उनको एज परमानेंट एज एन इंटरप्रेटर, मोदी जी का इंटरप्रेटर की तरह ये जॉब करते हैं। ही हिज सैलरी इज इन लैक्स। उनको एक गवर्नमेंट का बंगला, गवर्नमेंट की गाड़ी मिली हुई है, लाख में सैलरी है। उनकी जो IAS IFS की डिग्री थी जो वो कहते हैं, वो सब एक तरफ है। He is getting salary, he is getting a government bungalow, he is getting a bungalow car, he is moving with the prime minister। सिर्फ एक बात है, इनको मैंडरीन बहुत अच्छे से बोलने आती है, इनको चाइनीज बहुत अच्छे से बोलने आती है। ओनली वन थिंग हैज चेंज्ड हिज वर्ल्ड, लैंग्वेज लर्निंग हैज चेंज्ड हिज वर्ल्ड, हैज चेंज्ड हिज प्रोफेशन। आप भी अपनी दुनिया, अपना प्रोफेशन बदल सकते हैं, मिलियनियर बन सकते हैं। लैंग्वेज की स्किल सीखिए और उसको सही जगह इस्तेमाल कीजिए। उसको सीखिए, और सीखना बहुत बहुत आसान है। मैंने आपको शुरू में बताया, इलिटरेट पीपल कैन ऑल्सो लर्न लैंग्वेज। लैंग्वेज सीखिए, अपने होराइजन को वाइडन कीजिए, अपनी दुनिया को थोड़ा बड़ा कीजिए, कि ऐसे लिमिटेड नहीं देखिए कि ऐसा ही होता है, अब हम PhD करेंगे, हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, बस एक लिमिटेड लाइन में मत चलिए। पैरेलली एक ऑप्शन अपने लिए आप खड़ा कर सकते हैं कि मैं ये तो कर ही रहा हूँ, मैं इससे भी पैसे कमा रही हूँ, लैंग्वेज सीख के भी मैं पैसे कमा रही हूँ, और हो सकता है इसी को ही आपका मेन फोकस ऑफ योर करियर कैन बिकम। तो ये मधुचंद्रन, IFS ऑफिसर, one language he has learned changed his entire career, his life। उनकी पूरे पैसा कमाने की जो चीज है वो सिर्फ एक लैंग्वेज लर्निंग पे अब डिपेंड कर रही है, और सब फैसिलिटीज हैं एज आई टोल्ड यू।
So how it changes life? It can change your life as well. फिर से मैं आती हूँ क्या करियर ऑप्शन है, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स और सब लोग यही पूछते हैं कि मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, मैं क्या पैसे कमाऊंगा, मुझे क्या करियर ऑप्शंस है। या लॉ के वो बच्चे पूछते हैं कि लॉ पढ़ के मैं कौन सी लैंग्वेज सीखूं, एग्रीकल्चर पढ़ के मैं कौन सी लैंग्वेज सीखूं, या फिर साइंस वाले पूछते हैं। सो आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, आप एक लैंग्वेज सीखे, ऑलवेज ऑलवेज अपने आप को इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड बना सकते हैं। यू गो ग्लोबल, इसलिए टाइटल ही शुरू में था, गो ग्लोबल विद लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज। आप दूसरी कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स, दूसरी कंट्रीज के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं, बिकॉज आपको लैंग्वेज आती है, बिकॉज लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। दे नीड पीपल हु नो गुड लैंग्वेज एवरीवेयर। मतलब इंग्लिश, हिंदी भी आजकल लोगों को अच्छी तरह से नहीं आती है। अगर आपको अच्छी इंग्लिश और अच्छी हिंदी आती है, दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट फॉर यू। अब देखिए यहाँ पे फिर से ऑप्शंस हैं, गेम डिजाइनर, इंटरप्रेटर, टूरिस्ट गाइड, कंटेंट राइटर, फैशन डिजाइनर। ये सारे फील्ड्स में यू शुड, इट इज अ रिक्वायरमेंट, इज अ प्री रिक्विजिट दैट यू नो अ फॉरेन लैंग्वेज। सेल्स, मार्केटिंग, ये सब। 1/3 of the business want people specifically for their language skills. अगर आप naukri.com में जाएंगे कभी, naukri.com आप एक्सप्लोर करिए, उसमें स्पेसिफिक आता है जर्मन सीखने वाले, जर्मन लैंग्वेज वाले चाहिए, स्पेनिश सिखाने वाले चाहिए, या फ्रेंच, दोज हु नो फ्रेंच ओनली दे शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब। ऐसे स्पेसिफिक जॉब्स हैं वहां पे। सो जो बिजनेसमैन दे नीड। अब आप देखिए 20 कंट्रीज में स्पेनिश बोली जाती है। स्पेनिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेकेंड लैंग्वेज है स्पेनिश। और हमारे कंट्री में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, अब हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है, बट स्पेनिश 20 कंट्रीज में ऑफिशियल लैंग्वेज है। 20 कंट्रीज में पेपर वर्क जो है वो स्पेनिश लैंग्वेज में होता है। सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। इस तरह 29 कंट्रीज में फ्रेंच है, क्योंकि फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आकर कब्जा किया था, फॉर सम टाइम दे वर रूलिंग हियर, मे बी फॉर 200 years in fact they were ruling here। तो फ्रांस ने भी इस तरह कॉलोनीज बनाई थी दूसरी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में। तो जहां जहां उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, where they were ruling, वहां सब जगह फ्रेंच इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। सो they need people who know French। अब हम एमएनसीज पे आ जाते हैं। कौन सी एमएनसीज हैं जो किस लैंग्वेज को दे वांट एंड दे हायर पीपल। तो आप जर्मन लैंग्वेज के लिए अमेजोन है, अमेजोन से आप ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, बहुत बार आप ऑर्डर करते होंगे। तो अमेजोन जो है वो ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करता है जो जर्मन लैंग्वेज जानते हैं। तो जर्मन लैंग्वेज के लिए, उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपने बीएससी किया है, कि बीए किया है, कि एमए किया है, कि एमबीए किया है, कि आप पीएचडी कर रहे हैं। दे ओनली सी योर लैंग्वेज स्किल्स, और ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो। एक्सेंचर, एक्सेंचर इज अगेन एन एमएनसी जो जर्मन लैंग्वेज। सीवेंस, वॉक्सवैगन, सैमसंग, Hyundai, LG, all these companies, they need people and they employ people who know German language. German language ki I will tell my own experience. My sister is working in a multinational company in Bangalore, in Robert Bosch। Robert Bosch नाम है उस कंपनी का, आप गूगल सर्च करिएगा। सो रॉबर्ट बॉश एक बैंगलोर में कंपनी है, जर्मन कंपनी, उनका हेड ऑफिस जर्मनी में है। तो रॉबर्ट बॉश में दे हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट जहां पे दे रिक्रूट पीपल, those who will be training the employees of Robert Bosch in German language। तो रॉबर्ट बॉश एक कंपनी है जो बहुत सारा सामान बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, सॉफ्टवेयर्स भी बनाती है, लेकिन उनका एक टीचिंग डिपार्टमेंट है जो वहां के एम्प्लॉयज को जर्मन सिखाते हैं। और वो जो वहां उस रॉबर्ट बॉश में काम करता है एज अ जर्मन ट्रेनर, वो 70,000 सैलरी लेता है, 10 to 5 काम करता है, और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सिखाने का काम करता है। टीच जर्मन लैंग्वेज, 70,000 सैलरी, 10 to 5, बैंगलोर में। आपके ऊपर ब्रांड नेम है, रॉबर्ट बॉश के एम्प्लॉई। सो दे हैव अ डिपार्टमेंट उसके लिए। सो दे नीड पीपल, तो उस डिपार्टमेंट के लोगों को चाहिए कि जर्मन जो बहुत अच्छी बोल लेते हैं वो वहां जॉब कर ले।
और वो जो लैंग्वेज जो सीखते हैं वहाँ के एम्प्लॉयज, जो वहाँ पे जाके सीखते हैं, दे इंटरेक्ट विद देयर जर्मन क्लाइंट्स। जर्मनी से वहाँ पे जर्मन हेड ऑफिस से बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे इंटरेक्ट करना होता है, फोन में बात करनी होती है। सो यू सी, you can be employed in a multinational company, earn 70 lakh rupees, work 10 to 5, only and only because you know one language, only and only because you know one foreign language. And that is what personally I have seen. और ये सारी कंपनीज के नाम ही हैं जो जर्मन लैंग्वेज लोगों को चाहती है। अब आपको बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी का बहुत शौक रहता है ना, गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज एज अ स्टेबल जॉब, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है, तो गवर्नमेंट जॉब का एक अपना अट्रैक्शन होता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी लैंग्वेज से रिलेटेड जॉब्स हैं। तो आप सर्च करेंगे, आपको मिलेगा एक सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो है, सीटीबी, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, और फिर एक नेशनल ट्रांसलेशन मिशन है। सो ये जो दो डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, सो दे आल्सो हायर पीपल हु नो 2 लैंग्वेजेस। आपको 2 लैंग्वेजेस अगर अच्छी आती हैं, इंग्लिश और जर्मन, इंग्लिश और फ्रेंच, हिंदी और फ्रेंच, एंड यू नो इट वेरी वेल, तो आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीख लेते हैं। इंग्लिश हिंदी अगर आपको अच्छी आती है और उसके साथ एक लैंग्वेज सीख लीजिए, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, एमएनसी में भी आप यू गेट अ स्टेबल परमानेंट जॉब। तो इनकी वेबसाइट्स पे आप जरूर जाइएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग योर करियर इन लैंग्वेजेस, तो इन पे भी आपको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती है। स्पेनिश जॉब्स आई हैव ऑलरेडी मेंशन, जैसे जर्मन में हमने देखा था अमेजोन, एक्सेंचर, वैसे स्पेनिश के लिए भी बहुत सारी बीपीओज हैं, टूरिज्म में है, लैंग्वेज टीचिंग में है, जर्नलिज्म में है। स्पेनिश लैंग्वेज के साथ एक बहुत, इट इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, स्पेनिश बहुत इजीली यू कैन ग्रास्प। वो इंग्लिश से मिलती जुलती है, और जैसे जर्मन लैंग्वेज संस्कृत से मिलती जुलती है, बिकॉज जर्मन लैंग्वेज का ओरिजिन संस्कृत से हुआ है। स्पेनिश लैंग्वेज इंग्लिश से है मिलती जुलती। इट इज द सेकेंड लैंग्वेज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में आधी से ज्यादा पॉपुलेशन स्पेनिश लैंग्वेज में बात करती है। So उसमें भी it is very easy to learn and you have whole range of career options in USA and in other countries as well. स्पेन में तो of course है। और अगर आप जापानीज सीखते हैं, जैसे आप, मैंने आपको बोला जापानीज और चाइनीज, दीज आर द 2 people, और ये जो चाइना और जापान 2 countries हैं, दे आर वेरी रिजिड विद द लैंग्वेज। वो इंग्लिश नहीं बोलेंगे आपसे। You talk to them as a client, you talk to them as a layman, अगर आप उनकी कंट्री में भी जाते हो तो इट इज अ prerequisite that you learn their language, तभी वो आपको जॉब देते हैं। जैसे इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर फ्रांस से कोई आता है और उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो ही कैन मैनेज, उसको हिंदी सीखना जरूरी नहीं है। लेकिन जापान और चाइना में आपको जापानीज या मैंडरिन सीखना कंपलसरी है, क्योंकि वो आपसे बात ही नहीं करेंगे इंग्लिश में। इवन यूरोप में आप जाएंगे, फ्रांस में भी, और इटली में टू एन एक्सटेंट, जर्मनी में भी। सो इफ यू आर गोइंग एज अ टूरिस्ट, आप घूमने जाते हैं, सो टू गो टू एनी शॉप एंड ऑल, दे विल नॉट इंटरेक्ट विद यू इन इंग्लिश। यू नीड टू नो अ लैंग्वेज और यू नीड समबडी टू हेल्प यू अगर आप यूरोप में जाते हैं। तो जापानीज लैंग्वेज के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब। यू कैन वर्क इन होंडा कंपनी, यामाहा, सोनी, टोयोटा, ये सब जापानीज कंपनियां हैं जिन्होंने अपने ऑफिसेज इंडिया के डिफरेंट सिटीज में खोले हैं, शोरूम्स खोले हैं, एंड दे नीड पीपल, दे नीड पीपल हु कैन स्पीक जापानीज। जैसे डाइकिन है, डाइकिन जो एसी बनाते हैं, और जिनके आपने बहुत जगह बोर्ड्स देखे होंगे डाइकिन एसी के, तो डाइकिन ने भी अपने ऑफिस, भोपाल में भी है डाइकिन के ऑफिस। तो डाइकिन वही लोगों को रखते हैं जिनको जापानीज आती है, मतलब इंग्लिश हिंदी तो आती है पर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जापानीज की होनी चाहिए, वो इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे। सो दिस इज ऑल्सो अ बिग थिंग दैट यू नो एंड यू गेट अ ह्यूज करियर अपॉर्चुनिटी। फ्रेंच के बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन इंडिया। स्कूल लेवल पे भी फ्रेंच कंपल्सरी सिखाई जाती है नाउ डेज। स्टूडेंट्स आर लर्निंग फ्रेंच फ्रॉम द स्कूल डेज, और फ्रेंच के टीचर्स भी बहुत मिलते हैं। इंडिया में पॉपुलर है, बट एज सच वर्ल्ड में इट्स नॉट द ओनली लैंग्वेज इज पॉपुलर। वर्ल्ड में और लैंग्वेजेस भी पॉपुलर है, जर्मन और स्पेनिश भी इक्वली पॉपुलर है। बट फ्रेंच में 25 एम्बेसीज हैं, उसके ऑफिसेज हैं यहाँ पे, वी कैन लर्न लैंग्वेज। यू कैन, फ्रेंच इज आल्सो वेरी नियर टू इंग्लिश,
ऑल्दो उसकी ग्रामर बहुत डेप्थ में पढ़नी पड़ती है, बट इट इज नियर टू इंग्लिश, यू कैन ग्रास्प एंड यू कैन लर्न द लैंग्वेजेस। सो इसमें भी बहुत हाईली पेड जॉब्स मिलती हैं फ्रेंच लैंग्वेज में। हमारे यहाँ रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में फ्रेंच लैंग्वेज के 2 लेवल के कोर्सेज हो चुके हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, एडवांस लेवल का कोर्स भी होता है। अब दोज हु आर न्यू टू दोज टू रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, तो ये हमारा कैंपस है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैंपस है रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी का, भोपाल में है, इफ यू आर नॉट इन भोपाल। और यू कैन विजिट द कैंपस। यहाँ पे ही मैं लैंग्वेज कोऑर्डिनेटर हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ इंग्लिश में। सो यू कैन विजिट, इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस। आप यहाँ आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। और जैसे मैंने शुरू में बताया है कि सर्टिफिकेट कोर्सेज इसमें फ्रेंच, जापानीज, जर्मन और स्पेनिश, ये 4 लैंग्वेजेस में सर्टिफिकेट कोर्सेज चल रहे हैं। जून में जर्मन और स्पेनिश दोनों के नए बैच शुरू होंगे इन द मंथ ऑफ जून, जर्मन और स्पेनिश के, और बाकी फ्रेंच और जापानीज के लेटर ऑन, मे बी अगस्त के बाद शुरू होंगे। सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मैसेज मी, मैं आपके डिटेल्स, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दूंगी कि आप कौन सी लैंग्वेज में एनरोल होना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। सभी लैंग्वेज इक्वली इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन और जो हम फैसिलिटीज आपको देंगे वही बताएंगे, लेकिन जापानीज लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। स्पेनिश एंड फ्रेंच आर वेरी क्लोज टू इंग्लिश। जर्मन लैंग्वेज, अगर आपको हिंदी और संस्कृत अच्छी आती है तो वो जर्मन लैंग्वेज आपके लिए अच्छी है। आप किस फील्ड में हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे, अगर आप किस सब्जेक्ट में हैं। जैसे लाइब्रेरी साइंस और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेनिश लैंग्वेज, और इवन फ्रेंच लैंग्वेज लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, और फ्रेंच और स्पेनिश दोनों इट्स वेरी यूजफुल। जो डॉक्टर्स है मेडिकल साइंसेस में है उनके लिए जर्मन, क्योंकि उनके क्लाइंटल जर्मन में ज्यादा रहते हैं, तो जर्मन लैंग्वेज, इवन इंजीनियर्स के लिए भी। और आर्ट्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स के लिए फ्रेंच और जर्मन दोनों ही लैंग्वेज यूजफुल रहेगी। एजुकेशन लाइन में, जो एजुकेशन में है, बीएड एमएड कर रहे हैं उनके लिए फ्रेंच। इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए जापानीज, चाइनीज, ये 2 लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इंजीनियर्स बहुत ज्यादा है, एंड एमएनसीज भी इनको बहुत मांगती हैं इफ यू डूइंग इंजीनियरिंग। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, डाइकिन जो है, जो एसी बनाती है, वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या बीई, सिर्फ बीई आपकी है या आपने डिप्लोमा किया है और आपको जापानीज आती है, तो वो तुरंत आपको एम्प्लॉय करते हैं डाइकिन वाले। तो इंजीनियरिंग के लिए जापानीज, चाइनीज, ये लैंग्वेजेस, ये सारी ऑप्शंस हैं। बट एट द सेम टाइम आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, और किसी भी फील्ड में आप हैं, इफ यू लर्न one language, you master one language, you open your world to the international arena, and you can you do wonders। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए, एक टूरिस्ट गाइड के, एक इंटरप्रेटर के, कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर ली है बाय लर्निंग अ लैंग्वेज। तो अब जो सर्टिफिकेट डिटेल्स बता देती हूँ मैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज आर ऑफ 6 months ड्यूरेशन। जो ये सर्टिफिकेट कोर्स हमारे यूनिवर्सिटी रन कर रही है, ये 4 लैंग्वेजेस में, ये 6 months का है। इसमें वीक में सिर्फ 2 दिन क्लास होगी ऑनलाइन। आप घर बैठे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, ओनली 2 days इन अ वीक, अपने मोबाइल के बटन को दबाएंगे और उस क्लास में घुस जाएंगे। ऐसा 6 months तक चलेगा। जो हमारे टीचर्स हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस टीचर्स, और आउटसाइड भोपाल के हैं, वो भोपाल के भी नहीं है। जैसे जर्मन ट्रेनर हमारे पुणे में है, वो ऑलरेडी एक एमएनसी में काम करती हैं। जो स्पेनिश ट्रेनर हैं वो दिल्ली से क्लासेस लेती हैं, वो भी एक कंपनी में काम करती है। मतलब उनका उनका खुद का देखिए, जो ट्रेनर्स हमारे यहाँ जो पढ़ा रहे हैं उनकी अर्निंग कितनी है। वो एमएनसी में काम करती है, वहां भी पैसे कमाती हैं, और हमारे यहाँ हफ्ते में 2 दिन क्लास लेके भी 20,000 रुपए कमा रही है। तो जस्ट इमेजिन द वर्ल्ड हैज ओपनड अप। आप अपने फील्ड में भी रहिए और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी अपने लिए खड़ा कर लीजिए, और या इसको भी मेन करियर बना लीजिए। सो बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। जैसे मैंने बोला कि स्विमिंग सीखने के लिए पानी में कूदना है, तो यू हैव टू टेक द स्टेप अपने वो कंफर्ट जोन से, कि हम इतना ही कर सकते हैं, हमसे इतना ही होगा, उससे बाहर निकलिए और सीखिए। अभी ही एज है, जितना सीख लेंगे अपना आगे का फ्यूचर आप सेट करते जाएंगे। आपके पास ऑप्शंस रहेगा। अगर आपके पास कोई जॉब भी नहीं है तो आप ऑनलाइन, जैसे हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा के भी पैसा कमा सकते हैं।
तो अपने लिए ऑप्शंस खोलिए, अपने कंफर्ट जोन से कि मैं ये नहीं कर सकता, ये कर सकती, मैं इतना ही करती हूँ, मेरे पास ये काम है, वो काम है, दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस, सब एक्सक्यूज हैं। अगर आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। और इस दुनिया में वही लोग सक्सेसफुल हुए हैं जो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकले और बहुत कुछ सीख लिया, उन्होंने कर लिया। और जब हम इतना ही करेंगे, यही कर सकते हैं, हम बहुत बिजी हैं, तो फिर बिजी रहिए, देयर इज नो ऑप्शन। तो अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि हमारे जो लैंग्वेज कोर्सेज हम सिखाते हैं, वीक में 2 दिन ऑनलाइन सिखाते हैं, उसमें हम एक ऐप भी देते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा MOU है, मॉन्डली का ही ऐप है। इस ऐप के थ्रू आप 2 दिन जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उसके अलावा भी लैंग्वेज प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रू दिस ऐप। सो दिस ऐप विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू। जो हमारा पैकेज है, जो फीस स्ट्रक्चर है, उसमें ये ऐप भी इंक्लूडेड है। तो 2 दिन की क्लास हो गई हफ्ते की, ये ऐप हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ द क्लासेस होती हैं, स्टडी मटेरियल होता है, ये सारा पूरा 4000 रुपीज का पैकेज है। 4000 रुपीज में 6 महीने में एक बेसिक लेवल का लैंग्वेज कोर्स आप कर पाएंगे। एग्जाम भी ऑनलाइन है, सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, आपको आना नहीं है, आप घर बैठे सब सीख सकते हैं। और सर्टिफिकेट इज एक्सेप्टेबल एंड रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी AICTE UGC और हर गवर्निंग बॉडी से रिकग्नाइज्ड है, तो हमारे सर्टिफिकेट की वैल्यू हर जगह है। अगर आप हमारे कोर्स को 4000 रुपीज में करेंगे, अगर आप किसी एम्बेसी में जाएंगे, अभी फ्रेंच सीखने आप किसी एम्बेसी में जाइए, अलियंस फ्रांसिस में जाइए, या जर्मन सीखने उनकी एम्बेसी में जाइए, तो 10 से 15 हजार रुपए सिर्फ एग्जाम देने का लेते हैं, जस्ट 10,000 रुपीज टू गिव द एग्जाम, और पढ़ाने का अलग अलग उसका 20 to 25,000 रुपीज है। हम 4000 में आपको सिखा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, ऐप दे रहे हैं, exams, certificate, everything included, and that too online, completely online. So you should grab this opportunity, you should not miss this opportunity. ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मैं जैसे आपको बताई हूँ लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट की हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन मैसेज मी दिस नंबर 9329455759, 9329455759। ये नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं दैट यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेज, यू कैन कम टू रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यू नो, सो दैट यू कैन लर्न मोर एंड मोर थिंग्स, मोर एंड मोर लैंग्वेजेस। और भी कोर्सेज हैं यहाँ पर, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप वो भी कर सकते हैं, बट बेसिकली एज आई टोल्ड यू, जर्मन और स्पेनिश का कोर्स हमारा अभी जून में शुरू होने वाला है, और फ्रेंच और जापानीज का उसके बाद होगा। तो ये मैंने आपको सिखाया था पहले ही कि थैंक यू को क्या बोलते हैं जापानीज में, तो उसमें आ गया लिखे कि आरिगातो। फ्रेंच में हम बोलते हैं थैंक यू को मेर्सी। अब आप देखिए, मैं ये थैंक यू, गुड मॉर्निंग, इतने सारे लैंग्वेजेस की मैं भी सीख गई हूँ, बिकॉज आई एम द कोऑर्डिनेटर। तो इंग्लिश हिंदी के अलावा ये बेसिक वर्ड्स ऑफ ऑल द 4 लैंग्वेजेस मुझे आ गए, क्योंकि मैं इतनी बारी उसको बोलती हूँ। तो मेर्सी बोलते हैं हम, फिर थैंक के जर्मन में बोलते हैं, और स्पेनिश में बोलते हैं ग्रासियास। ग्रासियास, ग्रास, आपने देखा होगा ये वर्ड, आपने ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ऐसे एक फिल्म है जिसमें टमाटीनो फेस्टिवल है, जिसमें टमाटर फेंक के वो होली खेलते हैं, वो स्पेन का ही है, स्पेनिश है। और उस फिल्म में भी स्पेनिश लैंग्वेज यूज हुई है, अगर आपने वो फिल्म देखी है तो वो टमाटीनो फेस्टिवल जो है वो स्पेन में खेला जाता है, उस फिल्म में भी यूज हुई है, और उसमें ये ग्रासियस वर्ड बहुत बार आता है। सो ग्रासियस इज थैंक यू। So thank you for attending this webinar. I hope आपके जो थोड़े से विजन है वो ब्रॉड हुआ है, and you have learned a new thing, you'll try to learn a new language, ताकि आपकी horizon बड़ी हो और आपकी memory sharp हो, और you open a new path of career, a new career path for yourself. So I hope I'll stop sharing the screen. Yes. Or if you have, you can write in the chat box if you have any queries before we end up. So any questions or anything, otherwise तो इंग्लिश प्रोफेसर के लिए जो क्वेश्चन आए, इंग्लिश प्रोफेसर के लिए कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, तो इंग्लिश प्रोफेसर के लिए ऑल द लैंग्वेजेस आर गुड। मैं ही हूँ इंग्लिश की प्रोफेसर,
So otherwise French comes very near to English, and of course Spanish also. So you can learn either Spanish or French. uh, we don't have a मास्टर्स डिग्री. राजीव जी आप पूछ रहे हैं अगर मास्टर्स डिग्री नहीं है हमारे यहाँ, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन में वी डोंट हैव, इट्स अ सर्टिफिकेट कोर्स दैट वी आर रनिंग. सो सर्टिफिकेट कोर्स में टीचर्स हैं जो सर्टिफिकेट कोर्स को ऑनलाइन लेते हैं. तो सर्टिफिकेट कोर्स 6 मंथ्स का होता है हमेशा. तो आप बेसिक लेवल का करेंगे एंड देन सेकेंड एडवांस लेवल का होगा तो उसकी अलग सर्टिफिकेट होगी, जिसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज आते हैं. हाँ, अगर आपको लैंग्वेज की मास्टरी करनी है तो आपको 1 साल का कोर्स जरूर करना चाहिए. 6 मंथ्स में आप बहुत बेसिक सीखते हैं, बट आप पूरा 1 साल का कोर्स करते हैं, एटलीस्ट 2 लेवल का कोर्स करते हैं, A1 और A2. या जैसे जापानीज में होता है N5 और N4, उनके नाम अलग है. तो देन यू कैन एक्चुअली मास्टर लैंग्वेज. जैसे हमारे यहाँ से जो लोग ने सीखा है फ्रेंच के, हमारे 2 लेवल के कोर्सेज हुए हैं, सो दे आर एम्प्लॉयड, दे गॉट एम्प्लॉयमेंट एज फ्रेंच टीचर. You can take admission in any language you wish. You're most welcome. And okay, so Rajiv ji, मुझे पता है आपने किया हुआ है. I know. So you all other students can take admission in any language, but German and Spanish का नया बैच शुरू होने वाला है. So you can do. Yes, I know Rajiv ji that you have done. So all the best to all the students, participants. Thank you so much. As you say, arigato and danke and gracias and mercy for attending this webinar. And for more queries, you can contact personally to me. And of course, I will give you details. अभी advanced diploma course नहीं है हमारे पास, certificate courses ही हैं. We don't have a diploma. 1 साल का जब हो जाएगा तो वो डिप्लोमा हो सकता है. एंड फॉर ऑल द कोर्सेज सर्टिफिकेट है, फॉर ऑल द कोर्सेज 1 साल का कोर्स है. एंड अब हमने MA के स्टूडेंट्स के लिए भी, दोज हु आर डूइंग MA इन इंग्लिश लिटरेचर, उनके लिए भी फ्रेंच लैंग्वेज इंट्रोड्यूस एज अ कंपल्सरी कर दी है. 2 क्रेडिट का कोर्स है. तो यस, जापानीज वी विल स्टार्ट. राजीव जी अब आप कर सकते हैं उसके बाद ज्वाइन. एंड MA के स्टूडेंट्स भी विल नाउ लर्न फ्रेंच. कंपल्सरी हो रहा है. फिर इंजीनियरिंग के लिए भी कुछ कंपल्सरी होने वाला है. एंड फॉर PhD स्कॉलर्स in majority of the universities of India in Delhi and Mumbai, learning one foreign language is mandatory for PhD scholars. अभी हमने mandatory नहीं किया है, but very soon we will do. So it's always good for PhD scholars कि आप एक language में कोर्स में एनरोल हो जाए.